Can the aftermath of a pandemic dampen the patriotic fervor of world's largest democracy? No. Outrightly, no. This question will be answered today when we stand together to celebrate 72nd Republic Day of India. Honorable Chief Guest, Principal of Vidyalaya, Mr. N. Kumar, and all teachers, I extend a hearty welcome to all of you on this cozy morning. Please accept our warm greetings on the special Republic Day. This day is very special for us. Now, I request our today's Chief Guest, Mr. N. Kumar. Sir, invitation is extended to you. Please hoist a national flag, Tiranga. Mr. Sukhveer Singh, you are also requested. Kindly escort sir to the post. दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नाउ झंडा की। Thank you so much, sir.
नील गगन में बड़ी शान से आज तिरंगा फहराया, भारत का गणतंत्र अनूठा सारे जग को बतलाया। आज की इस बेला में मैं गुजारिश करूंगी मैडम सोनिया दुआ, टीजीटी इंग्लिश। मैडम, प्लीज स्टेप ऑन स्टेज and tell us something about this auspicious day, that is Republic Day of India. Over to Mrs. Dua. Most respected principal sir, teachers and my dear children, a very good morning to one and all present over here. Where the mind is without fear and the head is held high, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. I memorized this beautiful quotation by a great Indian poet and writer, Rabindranath Tagore, on this auspicious occasion, and wish for a tricolor may you soar high in the realm of freedom. Happy Republic Day to everyone out there. Yes, today we are celebrating our 72nd Republic Day. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only public has right to elect their representatives as political leaders to lead the country in the right direction. Republic Day reminds us of our struggle, how the demand of Poorna Swaraj was achieved. The struggle for freedom was based on some high principles and ideas such as non-violence, cooperation, non-discrimination, etc. For this reason, Republic Day is celebrated by all Indians with great zeal and enthusiasm. It also reminds us of the sacred values. Now I would like to call Vaishnavi Jha. She is from 9th B. She is going to tell us something about this day, that is Republic Day. Good morning, the Honorable Principal, respected teachers, parents and all my dear friends. This time we are celebrating 72nd Republic Day of India. That is why we are gathered here. Today I am going to speak few words about Republic Day, which is a very special day for all Indian citizens, and wish to all of you a very happy Republic Day. In India, Republic Day is not less than a festival. The whole country, regardless of caste, creed, religion, beams with joy and happiness. The entire country is laced in tricolor to convey that India is a nation where unity in diversity is celebrated. Republic Day reminds us our struggle, how the Indian National Congress, with the help of youth, achieved its demand for Poorna Swaraj. The struggle for freedom was based on some high principles and ideas, such as non-violence, cooperation, non-discrimination, etc. It also reminds us of the sacred value enriched in the Constitution of India. It is a day of national pride. Display of grand military on the Republic Day parade reminds us that the security of our territorial sovereignty is the outcome of many sacrifices. So let us all take an oath today to work hard for our country development. Thank you. Thank you so much, Vaishnavi Jha, for giving us wonderful information about this day. Now I call upon Anmol Thakur. She is from 11th A. She is going to recite a poem, special poem on Constitution of India. Constitution Day is the time to recall the famous Vande Mataram, the chant that gave us the freedom. May the Indian spirit prosper forever. To remember is to cherish. Hello everyone, today I, Anmol Thakur of class 11th, am going to recite a beautiful poem in front of you all. The title of my poem is Our Indian Constitution. It was the time after independence, but saw that some rules we need. Rules needed to govern the country that defines each and every deed.
For making our constitution, the best of Indians had got up. Soon in July 1946, the Constituent Assembly had set up. In August, after independence, the drafting committee set at work. They travelled to many countries to make a draft constitution first. At last, in November 1949, Constitution was fully enacted and adopted. It was signed by a president. It was accepted as adopted. On January 26, 1950, it was fully enforced, by the way. Everyone knows what day it is. It is celebrated as the Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, Anmol Thakur, for highlighting the importance of Constitution in our daily life. Thank you so much. Simran Kaur, she is from 12th A. She is going to speak on the occasion भारत में भारतीय संविधान का महत्व. मैं बुलाना चाहूँगी सिमरन कौर, शी इज फ्रॉम 12th A. जय हिंद. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. मैं सिमरन कौर, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आपको गणतंत्र दिवस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ. 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था. उसी उपलक्ष्य में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के द्वारा गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है. गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था. सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है. हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है. समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीज़ें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसका एक व्यापक तस्वीर ये है कि हम सभी भारतीय हैं. सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट होकर गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है. हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे. उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं. हर तरफ देखे लग रहा जय हिंद का नारा है. लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है. आओ कि आया है राष्ट्र पर्व, गणतंत्र हमारा है. नमन माँ भारती तुझे, दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है, दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है. गणतंत्र दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह भारतीय संविधान का एक स्थापना दिवस है. इस उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस को एक सम्मान प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन विशेष प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. यह भारतीय नागरिकों के जीवन का महत्वपूर्ण दिन है जो सभी को संविधान का महत्व समझाता है. भारत देश को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है. भारत में जनता के मत अनुसार ही शासक को चुना जाता है, जिसके फलस्वरूप चुने गए शासक को सत्ता की कुर्सी पर बिठाया जाता है. अगर जनता चाहे तो वह सत्ता पे बिठाए नागरिक को उसके पद से हटा भी सकती है. इसी के आधार पर गणतांत्रिक देश में जनता का फैसला तर्कशील होता है. भारत के उन सभी वीर जवानों के बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्रता रूप से जी रहे हैं. भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं. भारतीय समाज में अलग अलग प्रांतों और जाति समुदायों से संबंधित सभी नागरिक निवास करते हैं. भारत एक ऐसी भूमि है जो अनेकता में एकता का
एक महान दृष्टांत है। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समारोह और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर मनाया जाता है। परेड में सेना द्वारा दिखाए जाने वाले हथियार और उपकरण हमारे आर्म फोर्स की शक्ति को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दर्शाया जाता है। 26 जनवरी दिवस पर उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा सशस्त्र बलों का प्रयोग करके आर्म फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी बहादुर युवाओं को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को भी एक नया जीवनदान प्रदान किया। बलिदानों का सपना सब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। धन्यवाद। Now over to Muskan Thakur. Kindly welcome Muskan Thakur on stage for her performance. She is going to perform a very special dance on this occasion. Mind-blowing performance by Muskan Thakur. Thank you so much, बेटा। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी हमारे म्यूज़िक टीचर मिस्टर नीतीश कुमार को। वो आपके समक्ष अपना बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग प्रेजेंट करेंगे। ओवर टू मिस्टर नीतीश कुमार, म्यूज़िक टीचर KV नंबर 1 हलवारा। हेलो, नमस्कार। A.R. रहमान की कंपोजिशन है, कोशिश करूँगा।
वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 जग दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यारी, माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन्म जन्म तेरा हूँ दीवाना मैं, झूमू नाचूं गाऊं तेरे प्यार का तराना मैं। चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लुटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर तेरी होती है प्यार की, दुनिया तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में। माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी न जाना हम तेरा, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी न जाना हम तेरा। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी न जाना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now student from primary section, Anshuman from 3rd B, he is going to perform role of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तीसरी कक्षा ब का छात्र हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पूजनीय भारत माता को नमन करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी को प्रणाम करता हूँ तथा उनके वचनों को आपके सामने दोहराता हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेगा, परंतु मैं यह जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। जय हिंद। थैंक यू अंशुमान। भावनाओं से देशभक्ति के लय में से ये मौसम लय में हो गया। My next participant of today's day, Dilshan from 1st A, he is going to perform role of Bhagat Singh. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजबे कातिल में। Good morning everyone, my name is Dilshan Singh. Today I am presenting role of Bhagat Singh. I am Bhagat Singh. Today I want to ask a question from all of you. Who is अंग्रेज? हाँ, कौन है अंग्रेज जिन्होंने हमें ही इंडियंस को खून के आंसू लाए? Friends, time of action. Tit for tat. जैसे को तैसा, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये बॉम्ब मैं उन अंग्रेजों को मारने के लिए नहीं, बल्कि उन भगोड़ों को बताने के लिए फेंक रहा हूँ कि हम इंडियंस जाग रहे हैं और अब समय आ गया है, छोड़ो भारत छोड़ो। I love my country. You can kill me, but you cannot kill my idea. But you can crush me, but you cannot crush my power. पूरा साम्राज्य
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वंदे मातरम। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जय हिंद। Thank you so much, Dilshan. The role played by you, Sardar Bhagat Singh. It was mind-blowing. चाचा नेहरू जिंदाबाद हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रोल में आ रहे हैं आकाश। ही इज फ्रॉम 5th A. जय भारत। माई सेल्फ आकाश, स्टूडेंट ऑफ 5th A from KV number 1 AFS Halwara, is wishing you all happy Republic Day. I mean here to deliver speech by our first Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru on the eve of First Republic Day. My speech goes like this. At the dawn of history, India started on her enduring quest, and trackless centuries are filled with her strife, and the gardener of her success and her failures thought good and ill fortune alike. She, India, has never lost sight of that quest, forgotten India ideas which gave her strength. Thank you. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज रिया हमारे सामने झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के रोल में आ रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका इस्तकबाल कीजिए। शी इज फ्रॉम 3rd C. नमस्कार, मैं रिया सिंह KV नंबर 1 हलवारा की कक्षा 3री की छात्रा हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई बनी हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं झांसी की रानी हूँ, इस धरती माँ की बेटी। मैं अपनी जान पर खेलकर झांसी के लिए कुर्बान हो जाऊंगी, पर ये झांसी तुम्हें नहीं दूंगी अंग्रेजों। मेरे खून की एक एक बूंद इस झांसी के लिए कुर्बान है। अभी भी वक्त है अंग्रेजों, निकल जाओ यहाँ से। ये झांसी सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। गोपाल कृष्ण, स्टूडेंट ऑफ KV number 1 हलवारा from 2nd A, playing the role of महात्मा गांधी। अहिंसा परमो धर्म। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Aditya Joshi from 7th A going to recite very special poem today, Khuni Hastakshar. Over to आदित्य जोशी। शुभ प्रभात, मेरा नाम आदित्य जोशी है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक खूनी हस्ताक्षर है, जो कुछ इस प्रकार है।
वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होकर बहता है। वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा ने मांगी उनसे कुर्बानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। वे बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, वे बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, सुनो वह तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, सुनो वह तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आ जानू बाहों ऊंची करके वे बोले खून मुझे देना, खून मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना, इससे बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक सुनाई देते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आपके समक्ष आ रहे हैं दक्ष 4th B, मनराज 3rd B and शिवांश from 2nd। जय जवान। शांति से आप अपने घर में रह सकते हैं जब तक कि भारतीय सेना सीमा पर तैनात है। हर बार गिरकर भी उठना जानती है भारतीय सेना। मेरे कंधों पर 2 सितारे आकाश में लाखों सितारों से बेहतर हैं। जय किसान। पैर में जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश सब कुछ ही वे सहते हैं। आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी तूफान सब सहते हैं। खेतों में हरियाली आए, दिन और रात लगे रहते हैं। मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं। वो है मसीहा मेहनत का, जिसको किसान हम कहते हैं। जय विज्ञान। विज्ञान के चमत्कार हमारा जीवन सहज बनाते हैं, पर प्रकृति के चमत्कार धूप, पानी और वनस्पति के बिना तो जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं। Thank you so much, children, for giving us the message that all are equally important. Due to COVID-19 pandemic, we lost many lives. Now Sakshi is here to make us aware what directions given by WHO we have to follow. And happy Republic Day to all. I am Sakshi Shah of 5th B. Today I am going to give you some steps to prevent from coronavirus and mind your health. First, connect with friends and family using technology. Second, disconnect from fake news and excess information. Third, plan a routine and find time to unwind. Fourth, exercise and sleep well. Fifth, stop, take a deep breath and be positive. Thank you. मित्रों, पंजाबियां दी शान भंगड़ा, गिद्धियां ते छिंजां दी आबाद भंगड़ा। तो आज के इस प्रोग्राम में भांगड़ा लेके आ रहे हैं कुसम धिंगड़ा। सुप
our country coped with pandemic. Now, what is our role further? To throw light on this, I invite our today's chief guest, Mr. N. Kumar, Principal KV number 1 Air Force Station, Halwara. Sir, I request you kindly address the gallery, address our teachers so that they may able to motivate our students. Over to Principal, sir. सुप्रभात सभी को। सभी अध्यापकगण, ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे बच्चे, उनके साथ उनके माता पिता और जो लोग इस प्रोग्राम को ऑनलाइन माध्यम से देखने वाले हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी 72वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस ऐसा दिवस जिस दिन भारत के लोगों को ये अधिकार मिला कि वो अपने संचालन के लिए एक ग्रुप या अपने में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर सकें, चुन सकें, जो आगे चलकर उनकी बातों को समझकर देश को आगे बढ़ाएं, देश को चलाएं, देश की दिशा दशा समय के अनुसार तय करें और जो बदलाव जरूरी है उनकी दिशा सुनिश्चित करें, जिससे देश विश्व में एक अलग पहचान बनाए, वही पहचान जो यहाँ के लोगों की पहचान है। फर्स्ट 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार ये सारी चीजें पॉसिबल थी या जिनका किया जाना सुनिश्चित किया गया। अगर हम देखें, सभी लोग मिलकर एक ग्रुप को चुने, ये मानकर कि वो ग्रुप या वो लोग हमारी सारी भावनाओं को समझेंगे और हमारे हितों को ध्यान में रखकर देश के लिए उन चीज़ों को निश्चित करेंगे जिससे देश आगे बढ़े और लोग साथ साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, जिससे देश ने एक अलग पहचान बनाई और जीवन के लगभग सभी आयामों में अपनी पहचान बनाई। भले ही वो खेती किसानी हो, जिसमें हमारा देश आत्मनिर्भर बना, भले ही विज्ञान हो, जिससे लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली, हमारे जवान हो जिन्होंने हर कदम पर ये निश्चित किया कि देश सुरक्षित रहे, देश आंतरिक और बाह्य जो भी संकट हैं उन सभी से देश की रक्षा हो, साथ में लोकतंत्र जिसको हम गणतंत्र कहते हैं वो भी बचा रहे। ये सारी चीजें सुनने में थ्योरेटिकली बहुत आसान लगती हैं, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया है, जिसको कई बार ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि जो हम आज कर रहे हैं, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या इसका प्रभाव होगा।
गणतंत्र में सरकारों को चुना भी गया, साथ में उन सरकारों ने देश हित में बहुत सारे कार्य किए, और बीच बीच में अगर कहीं ऐसा लगा कि दिशा थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो वो दिशाएं ठीक भी हुई। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास अवसर है कि जिन लोगों, जो गणतंत्र है हमारा, उस तंत्र में तंत्र को चलाने के लिए जिन लोगों को हमने अधिकार दिए, उनको बदलने के भी अधिकार हैं हम लोगों के पास। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि तंत्र नहीं बदले गए हैं, तंत्र बदले गए हैं, लेकिन उन तंत्रों को बदलने वाले भी गण थे, अभी भी गण हैं। इस गणतंत्र को संभालने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, लोग हमारे पास हैं, लेकिन उन लोगों को संभालने के लिए, उस सोच को बचाकर रखने के लिए भी साथ में लोगों की जरूरत है। और वो लोग मेरे हिसाब से और कोई नहीं, हम लोग हैं। एज ए विद्यालय, एज ए शिक्षक, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस सोच के साथ चलें कि वो अपने से ज्यादा देश का हित सोचें। जिस दिन हमारी सोच का दायरा छोटा हो जाता है, हम अपने तक सीमित हो जाते हैं, अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, या जहां कहीं भी मेरा या अपना तक सीमित हो जाते हैं, तो वहीं से कहीं ना कहीं हम अपने दायित्व से थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हम कोशिश करें कि हम इन चीजों से बचें, और साथ में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ जुड़ती हैं, उनको जाने अनजाने हमारी सोच ट्रांसफर होती है। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, हम चाहते ना चाहते उन तक वो चीजें पहुंचा देते हैं। साथ में जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे बच्चे उस सोच के साथ रहें कि आने वाले समय में जब देश के नागरिक बने, तो देश के अच्छे नागरिक बने, और देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम देखें जिस स्थिति में आज हम गणतंत्र मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को वो शिक्षा दी कि वो देश के लिए आगे आए। बच्चे देश के लिए आगे आए क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें वो सोच दी। अगर आज हम वही सोच अपने बच्चों को देते हैं तो निश्चित ही हमारा देश, हमारा गणतंत्र विश्व में बहुत आगे होगा, और निश्चित ही सबसे आगे होगा। और साथ में हम देश दुनिया के साथ साथ अपने आप को बचाकर, अपने गणतंत्र को आगे बचाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हम सभी लोग गणतंत्र को बचाने के लिए, गणतंत्र को संभालने के लिए एक अच्छी सोच के साथ हम अच्छे नागरिक बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये सब मानते हुए कि हम सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन गणतंत्र को बचाने में करेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत। No duty is more than that of returning thanks. I request Madam Mrs. Bhatt, Senior Most PGT, KV number 1 Halwara. Madam, kindly step on stage and propose vote of thanks. Over to Mrs. Bhatt. Most respected Principal Sir, Shri P.K. Singh ji from Education Department, Air Force Station Halwara, dear colleagues and the children, those who have joined online. First of all,
congratulations to all of you on this great day, 72nd Republic Day of India, the day of which all of us should be proud of. The day is not achieved easily. It is the result of great efforts by our freedom fighters and intellectuals. After independence, it was the work of a team of intellectuals who made longest written this document called Indian Constitution and made this country a sovereign. And we should be proud of this work, proud of this, we can say, being the sovereign country. So thank you, sir, for your motivation and inspiration. I thank you, Madam Sonia, for wonderful words spoken here to make us know about what this day is all about, to make the children know, because children, they are the future generation. They are to take the country forward. They should know the importance of these days. They should know how we achieved this thing. So thank you, ma'am. Then my thanks goes to Nitish sir, who beautifully sang a song here highlighting, glorifying the mother nation, Mother India. I also extend my thanks to the team of the teachers who made this function possible for even the children, those who are sitting at home. That is the technical support, how the mobile is working here. So I thank all the teachers for this work. My thanks goes to the children, those who are connected online, those who are attending this function virtually. Children, the country is yours and you have to be the part of each function like this. My thanks to Shashi ma'am for beautifully anchoring the program. Shashi ma'am, thank you, and we always find your words inspiring. I thank each and every one who has directly or indirectly contributed to the conduct of this beautiful function. Thank you all once again, and Principal Sir, once again, thank you for motivating us, inspiring us. Jai Bharat, Jai Hind. Thank you so much, Madam Mrs. Bhatt, for your wonderful words. Thank you so much. Now we have come to the end of this program. I pray to God, may our country will scale new heights in the coming months. Peace and prosperity will shower blessings upon us. May God bless us all. शबा खैर, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ से ऊपर शायद कुछ भी नहीं है. नो डाउट मैडम ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना को मात दे दी है. आई विश ऐसा ही हो, सब खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, जिंदाबाद रहे मेरा देश महान. भारत है तो मुमकिन है, भारत है तो मुमकिन है. धन्यवाद.